students, how is going your study? Very well, fabulous, marvelous, saralous, बहुत बढ़िया, very good, very good, very good. So today we are going to do exercise. Yes, exercise. Like that exercise nahi, because we have studied about the drift velocity, Ohm's formula and resistance dependency formula. R is equal to rho L upon A. This is the time to do some exercise on that formula. So ready आप? Yes. First question आपके सामने है. If a resistance wire of resistance R is stretched up to n times, up to n times of its original length, of its original length, then find new resistance, and find new resistance. Okay, so dear student, we have a wire. Try करें बच्चों, try करें, then reply करें. You have a resistance wire having a length, say this is the wire having length L naught, having cross section area A naught and resistance R naught initially. Okay. When you stretch it, what will happen? So length increases and cross section area will decreases. Am I right? So after stretching, you will find that length will be increases, and this is the L final, n times of L naught. That is given n times of initial, or you can say original length. And area, what's about the area? Area also change. Say A final. And resistance also change. Why resistance change? Because resistance depends on length and cross section area. Okay, so ready? Initially you can say R naught, R दे रखा है, R naught is equal to rho L naught upon A naught, and this is given R, rho L naught upon A naught. So this is equation first. Now from second equation you can say R final is equal to rho L final upon A final. Okay, so dear student, tell me L final and A final. L final, A final आपको फाइंड करने. Why are you writing again sir? Okay, अब आपको ये फाइंड करने L final, A final फाइंड कर सकते हैं. Obviously, why? Think about that. जब आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, डायमीटर डिक्रीज होने से एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा? बट वॉल्यूम तो फिक्स है. वॉल्यूम में तो हमने कुछ नहीं किया, ऐसा तो नहीं कट करके फेंक दिया हो, नहीं. सो वॉल्यूम रिमेन फिक्स्ड, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. हमने ऐड नहीं किया कोई वायर, हमने स्ट्रेच किया है, तो जितना मटेरियल पहले था अभी भी उतना ही है. सो यू कैन से वॉल्यूम विल फिक्स, तो एरिया इंटू इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट आ जाएगा, ए इंटू एल नॉट, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल एरिया, फाइनल लेंथ. गॉट द पॉइंट? सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एल फाइनल? एल फाइनल अपॉन एल नॉट, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं रेशियो. कैन यू सी मी हियर? सो फ्रॉम हियर एल फाइनल अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए फाइनल. ये रेशियो आ गया. अब इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, ऑब्जर्व नहीं हो रहा. ओके, लेट्स टेक. यहाँ पे लीजिएगा, यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट, ए नॉट अपॉन ए फाइनल इज इक्वल टू एल फाइनल अपॉन एल नॉट. इसी को अरेंज कीजिएगा. ओके, जब आप अरेंज करेंगे ए फाइनल इधर, एल नॉट, एल फाइनल कितना दे रखा है? एन टाइम्स ऑफ एल नॉट. सो एल नॉट कैंसिल. सो फ्रॉम हियर यू हैव ए नॉट अपॉन ए एफ एंड एल एफ अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू एन. ये आपके पास में एक रेशियो आ गया. अब आपको क्या फाइंड करना है सर? इक्वेशन नंबर दिस एंड दिस डिवाइड करो. इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट को, सेकंड को डिवाइड कर दो बाई फर्स्ट से. सर ऐसा क्यों? अरे भाई आर फाइनल निकालना है हमें, आर फाइनल निकालना है तो आपके सामने है.
रो कैंसिल हो जाएगा, एल एफ अपॉन एल नोट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, जस्ट अपोजिट रिवर्सिबल पॉसिबल है तो ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन ए एफ, बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना एरिया, दैट्स वाई रेसिप्रोकल एफ नॉट। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एल एफ अपॉन एल नॉट n? What is the ratio of a naught upon f? n. So you can write here rf upon r naught and that is the n square. So must remember this, the new resistance will be n square r naught times n square r naught times. So what is the answer of it dear student? Answer is new resistance जो होगा आपका final resistance होगा, ठीक है, that is n square times of r naught. अब आप किसी भी आंसर का किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। किसी वायर को स्ट्रेच करके डबल कर दिया, पहले रेजिस्टेंस आर था, अब न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा सर, डबल मीन्स n इज इक्वल टू 2, सो 4 टाइम्स। अरे यार देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि यहाँ पे डबल कर दिया, डबल करने का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 2, तो नया रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर r, तो 4r। गॉट द पॉइंट। ऐसे अगर बोला जाए कि 3 टाइम्स कर दिया, देन व्हाट इज द आंसर? अगर लेंथ को स्ट्रेच करके कितना गया 3 टाइम्स, तो कितना आएगा 9r। सिंपल है। यस, एक क्वेश्चन देता हूँ, रेडी रहना। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। Yes dear student, we have another question. Are you ready? Yes, question is saying that if resistance wire of resistance R is stretched by, भैया यहाँ पे एक पॉइंट कर लेना, y is word और वहाँ पे हमने 2 लगाया था, stretch up to, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड में आप थोड़ा समझना, मैं समझा देता हूँ। इफ़ आई एम राइटिंग हियर स्ट्रेच्ड बाई, ठीक है, स्ट्रेच बाई। अब y का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बोला कि आप इनिशियल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ओके, इनिशियल लेंथ है 5, अब स्ट्रेच बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको 2 सेंटीमीटर से क्या कर लिया है हमने, स्ट्रेच कर लिया है। इट मीन्स जो फाइनल लेंथ होगी वो क्या होगी, इनिशियल लेंथ प्लस जो चेंज किया आपने, दैट इज ये तो होगा 5 प्लस 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। इफ देर इज बाई, इफ आई एम राइटिंग योर स्ट्रेच अप टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, अप टू लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस इज द फाइनल लेंथ 8 सेंटीमीटर। सो प्लीज़ बी फोकस, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए बाई है, इट मीन्स इनिशियल लेंथ में ऐड करना है। जब भी बाई हो, बाई मीन्स होता है आप ऐड करें, क्या करना है, ऐड। सो रेडी है? यस, यहाँ पे बोला है कि इनिशियल लेंथ आप कंसिडर कर लीजिएगा एल नॉट, फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी सर, इनिशियल लेंथ प्लस डेल्टा एल, बिकॉज देयर इज बाई, ओके। Now what is delta L? Sir, it is saying that 10 percentile of L naught, यही बोला है, 10 percentile of L naught इंक्रीज कर दी। So from here क्या आ जाएगा, L naught plus 10 upon 100 L naught, 110 upon 100 L naught, 1 upon 10 L naught, you can say 1.1 L naught, am I right? ये आप लिख सकते हैं एल फाइनल, ठीक है। एल फाइनल अपने पास में आ गया। सो व्हाट कैन यू राइट सर, एल फाइनल अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू 1.1, ये रेशियो आ गया। एंड ये रेशियो अपना क्या होता है, एन होता है, ये रेशियो अपना क्या होता है, एन। सो टेल मी डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फाइनल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे आप सर, आर फाइनल लिखेंगे, एन स्क्वायर आर नॉट क्या दे रखा है, आर, ठीक है। एन कितना आया 1.1 होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1.21 R. This is the new resistance, dear student, this is the new resistance, देख सकते हैं आप, this is the new resistance, okay. Now question is that sir, find new resistance, you can say percentage increase also, percentage increase भी आपको find करना है। परसेंटेज इंक्रीज हाउ विल यू फाइंड, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डेल्टा आर अपॉन initial into 100 percentile. Got the point dear student, tell me. So from here what is that, delta r का मतलब क्या हो गया सर, चेंज कितना आया, पहले कितना था सर, पहले और फाइनल में r फाइनल माइनस r इनिशियल अपॉन r इनिशियल इंटू 100। Got the point dear student, क्या ऊपर लिखा जाए, यस, चलो ठीक है, यहाँ पे बता दिया जाता है। देखिए पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा,
यहाँ से परसेंटेज हमारे पास में आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इनिशियल इंटू 100। हमेशा इनिशियल पे निकलता है ना परसेंटेज, हमेशा इनिशियल पे फाइंड किया जाता है। तो ये हो जाएगा सर आर फाइनल आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू 100। आर फाइनल कितना है 1.21, आर इनिशियल कितना है आर इनिशियल आर इंटू 100। आर कैंसिल हो जाएगा, 0.21 रहेगा, 0.21 को मल्टीप्लाई करोगे 21%। आंसर क्या आ जाएगा 21%। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल है। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। ओके, बाकी लेंथ डबल एरिया हाफ वो भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। Yes dear student, we have another question. In this question is saying that a wire has a resistance of 60 ohm. It is melted, okay, and drawn into a wire of half length of its original length. ठीक है, अब आपने मेल्ट कर दिया उस वायर को, ऐसा वायर बनाया जो पहले वाले वायर की हाफ लेंथ है, लेकिन वॉल्यूम तो सेम है क्योंकि उसी से तो बनाया आपने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत क्वेश्चन किए होंगे आपने 10th क्लास में। ठीक है, मेल्टिंग वाले वॉल्यूम से इधर ये बना दिया। वेरी गुड। फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। वेरी गुड। आप बता दीजिएगा फटाफट से। सर एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल। एल फाइनल कितना हो गया सर हाफ हो गया एल इनिशियल का। एल इनिशियल एल नॉट कंसिडर कर लो तो हाफ, तो ये आ गया एन। ये अपना क्या आ गया एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल का रेशियो हाफ आ गया एन। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। सर न्यू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा सर एन स्क्वायर इनिशियल, एन स्क्वायर कितना है हाफ टू, ठीक है आर नॉट। सो कितना हो गया ये आर नॉट बाई 4। ठीक है, आर नॉट बाई 4 न्यू रेजिस्टेंस आपके पास में आ गया है, यानी 3/4 तो क्या हो गया डिक्रीज हो गया। सो चेंज इन कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज फाइंड किया जाए। ठीक है, परसेंटेज चेंज फाइंड किया जाए तो ये हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइड बाई आर इनिशियल इंटू 100। ओके डियर स्टूडेंट टेल मी आर फाइनल कितना है सर। आर फाइनल हो गया आर नॉट अपॉन 4 माइनस इनिशियल कितना था आर नॉट, या आर लिख लीजिएगा आर नॉट इंटू 100। तो कितना आ गया, ये आ गया सर माइनस का 3/4 इंटू 100। माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। माइनस क्यों आया डिक्रीज, क्योंकि लेंथ डिक्रीज कर दी। तो यहाँ माइनस का जो मीनिंग है डियर स्टूडेंट ये है कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। रेजिस्टेंस क्या हो गया है डिक्रीज हो गया है, माइनस का ये मतलब है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो यहाँ पे कितना परसेंटेज आ जाएगा 3/4 का मतलब 7.5 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 75%। 75% रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। देख पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, 75% रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज। व्हाट्स अबाउट द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल, इट इज़ द नॉट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। इट मीन्स रजिस्टिविटी रो, रजिस्टिविटी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, डज नॉट चेंज और डिपेंड ऑन साइज एंड शेप, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप। ये केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सो इट रिमेन कांस्टेंट। ये क्या रहेगा, सो रिमेन कांस्टेंट। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये किसकी प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप। तो इस चीज़ का अब ध्यान रखें। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। हेलो डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन यू कैन रीड एट द स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे है। इसमें जो गिवन डाटा है केयरफुली रीड कीजिएगा। आपको करंट गिवन है 1 एम्पियर। ठीक है, लेंथ गिवन है 0.1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी 1.7 10⁻⁸ ओम मीटर, एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है। जो आपका नंबर ऑफ पर केजी एटम भी गिवन है 6.02 10⁻26 और एटॉमिक वेट 63.5 जो कॉपर के लिए है। ठीक है, उसको कैपिटल एम से आप डिनोट कर सकते हैं, वो गिवन है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड, अब आ जाइए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है I = R, एंड I हमें गिवन है और रो R = हम लिख सकते हैं ρL/A, इजंट इट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे। I1 हो गया, रो आपको गिवन है 10⁻⁸, लेंथ आपको गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ बच्चों ये रहा। जब आप सोल्व करेंगे ना
-6 तो यहाँ 2 रह जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1.7 10⁻³ यूनिट वोल्ट आएगी। तो ये 1.7 मिली वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, मिली वोल्ट में यू कैन कन्वर्ट, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द करंट डेंसिटी। सो रेडी फॉर दैट। करंट डेंसिटी क्या होता है? J = I/A, यही होता है करंट डेंसिटी। डियर स्टूडेंट, करंट डेंसिटी, ओके, करंट कितना गिवन है? 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 × 10⁻⁶, तो फ्रॉम हियर 10⁻⁶, यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। ओके, ए क्यों नहीं लिख रहा? बिकॉज एरिया ले रहा हूँ ना ए, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो विच फॉर्मूला यू यूज? τg या फिर I = NeAVD? बिल्कुल करंट वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। यू हैव टू यूज I = NeAVD। ओके, VD = A, τg हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, है ना, यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज फिर इसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करो, वही आ जाएगा। यहाँ पे डेरिवेशन देखा था, बहुत डेरिवेशन किए हैं उसके, तो यहाँ से VD क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? फ्रॉम हियर VD = I/NeA। मेरे पास में I है, A है, E है, स्मॉल n नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाउ विल यू कैलकुलेट? उसके लिए फॉर्मूला होता है, तो मस्ट रिमेंबर दैट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे यहाँ से? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये आ जाएंगे स्मॉल n = आपका हो गया डेंसिटी इंटू नंबर पर केजी एंड डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। ओके, सो फॉर्म यह वैल्यू पुट करेंगे। D का वैल्यू डेंसिटी हो गया, डेंसिटी आपको गिवन है इरा 8.9 × 10⁻³ इंटू नंबर ऑफ पर केजी एटम दे रखे हैं 6.02 10⁻26। तो ये हो गया यहाँ से 6.02 × 10⁻26 डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास आपको कितना दे रखा है? 63.5। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 8.4 × 10⁻28। ये आपको मिल जाएगा, है ना, पर मीटर क्यूब। ये क्या है? पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब यानी, ठीक है, पर मीटर क्यूब, ये नंबर डेंसिटी होता है। व्हेन यू पुट इट हियर यू विल फाइंड योर आंसर 8.4 10⁻28 इंटू 1.6 10⁻⁻19 होता है E का वैल्यू। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है यहाँ पे? 10⁻⁻6। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 7.4 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द ड्रिफ्ट स्पीड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सो मस्ट रिमेंबर दैट, याद रखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, और लाइक जरूर कर दें। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। Yes dear student, you can see next question in at your screen। रीड कर पा रहे हैं केयरफुली। आपको गिवन डाटा है कि जो वायर है उसके अक्रॉस एंड पे 100 वोल्ट अप्लाई कर रखा है। ओके, लेंथ 1 मीटर है, देन 1 मीटर दे रखा है, जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका कंडक्टिविटी दे रखा है वो 5.81 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, 5.81 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एंड जो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी है स्मॉल n, दैट इज 8.5 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ओके, सो फाइंड करना आपको कि VRMS वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन्स की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और जो ड्रिफ्ट स्पीड है इनकी, उन दोनों में क्या रेशियो, क्या कंपेरिजन है। चलो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, फर्स्ट VRMS का ये फॉर्मूला है। VRMS आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, √3 kBt/मास। आपने पढ़ाई होगा KTG में, ठीक है, ये स्पीड होता है किसी एटम के लिए, तो 3 kBt/m। kB यहाँ पे बोल्ट्जमैन नियतांक है, ठीक है, जूल पर केल्विन यू कैन से, यही होता होगा इसका, ठीक है। हाँ जी, 1.38 10⁻⁻23 वैल्यू होता है। T फाइंड करेंगे। T कितना है सर? T यहाँ पे है 27 + 273, तो हो जाएगा 300 केल्विन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 10⁻31 kg। So for the value you will find answer 3 × 1.38 × 10⁻23 × 300 divide by
9.1 into 10 to power minus 31. When you divide and you will find the answer. जो इसका जो वैल्यू आएगा डियर स्टूडेंट वो 10 to power 5 में आएगा 1.17 into 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा आता है, हमें पहले भी इनिशियली जो स्टडी की थी थर्मल वेलोसिटी से कंपेयर किया था तो बहुत ज़्यादा है, और ड्रिफ्ट आता है वो माइनस पावर में आएगा, देखिए कभी। सो ये अपने पास में VRMS आ चुका है। वी ड्रिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी ड्रिफ्ट अभी अभी आपने बताया था सर I अपॉन NEA, I इज इक्वल टू NEAVD। तो I अपॉन A को क्या लिख सकते हो? जे आप यहाँ लिख सकते हो। I अपॉन A को क्या लिख सकते हैं? जे करंट डेंसिटी, ये हो जाएगा NE। अरे भैया होता है नहीं होता, J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A। गॉट द पॉइंट? यस, तो J इज इक्वल टू I अपॉन A हो गया। नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट, हाँ यहाँ पे J कैसे फाइंड करेंगे? एक रिलेशन याद है, सिग्मा आपको गिवन है तो J इज इक्वल टू आप लिखा करते थे सिग्मा E, ठीक है, ये रिलेशन याद है, वेरी गुड। अब मुझे E तो नहीं गिवन, तो मुझे E और वोल्टेज में रिलेशन मालूम होता है V/L। वोल्टेज मुझे गिवन है, लेंथ मुझे गिवन है, सो मैं E को V/L से रिप्लेस कर सकता हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ऑब्वियसली सर, कौन मना करेगा, ठीक है। अब मेरे पास में सिग्मा है, V है, L है, N है, E है, J वहाँ से आ गया, एरिया भी है, एरिया इज गिवन नॉट, नो नीड क्योंकि ये रख रहा हूँ ना वहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा VD इज इक्वल टू J का वैल्यू रखो वहाँ पे, सिग्मा V अपॉन NEL। अब मेरे पास ऑल वैल्यूज है, सिग्मा VNEL, सो पुट कर देते हैं फटाफट से। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 5.81 10 to power 7 इंटू वोल्टेज कितना गिवन है आपको? 100 डिवाइड बाई N नंबर डेंसिटी 8.5 इंटू 10 to power 28, ये हो गया 1.6 10 to power minus 19 इंटू लेंथ कितना है? 1 मीटर। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन माइनस, चेक करके देखिए जी स्टूडेंट कितना आया, ये डेसिमल पॉइंट में आया 0.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आप इसका रेशियो अगर फाइंड करना है आपको VD अपॉन VRMS, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द VD अपॉन VD upon VRMS, then what is the value of VD? 0.43 divided by VRMS. We have calculated that 1.17 10 to power 5। भैया कितना आएगा? ये नेगेटिव में हो जाएगा आई थिंक मेरे को, तो 10 to power minus 6 3 point something आएगा 10 to power minus 6, देखिएगा 3 point something, yes 3.67 into 10 to power minus 6। This is the ratio and this is the desired आंसर और क्वेश्चन। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं, रेडी रहे हमेशा, ठीक है, बने रहें, लाइक कर दें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, प्रशंसा भी कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रीड कीजिए केयरफुली। क्या गिवन है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर एट आइस पॉइंट, इट मीन्स वाटर आइस पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? 5 ओम। एट स्टीम पॉइंट पे कितना है? 5.39 ओम। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस यू कैन से वाटर स्टीम पॉइंट। इफ इट इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5.975 ओम हो गया, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो बताइए व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर हॉट बाथ, क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? याद है? हाँ जी याद है, ये गिवन डाटा आ जाए, सॉल्यूशन आपके सामने है, तो यू नो दैट RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पे। सो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू, दिस इज द R100, दिस इज R0 1 प्लस अल्फा, हमें गिवन नहीं है, ये हो जाएगा 100 माइनस 0, टेम्परेचर गिवन है, ठीक है यहाँ से। ओके, एक इक्वेशन आपके पास में ये हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन आपके सामने है सर, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0, यहाँ से आ जाएगा सेकंड। सो 100 क्यों सर? ये तो टेम्परेचर T है ना, हाँ T है T माइनस 0। तो यहाँ से अगर अल्फा फाइंड कर लें और यहाँ अल्फा पुट कर दें, आपके पास में आंसर आ जाएगा। R0 गिवन है ही, T हमें मिल जाएगा, RT गिवन है ही, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ से पुट करते हैं, अल्फा फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू R100 माइनस R0 अपॉन, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा R0 डेल्टा T, ये फॉर्मूला आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ से अल्फा फाइंड करेंगे, R0 माइनस में जाएगा, R0 कंपेरिजन में डाउनवर्ड। सो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं,
5.395, ये हो गया 5, ये हो गया 100 माइनस 0। सो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो आ रही है 0.39 डिवाइड बाई 500। सो व्हाट इज़ द, इस अल्फ़ा को यहाँ पे पुट करेंगे सो हमें मिल जाएगा ये आर टी कितना है 5.975 इंटू ये हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस अल्फ़ा टी, अल्फ़ा की वैल्यू 0.39 अपॉन 500 इंटू टी। सर यहाँ से सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिएगा, मैंने सॉल्व इट टी इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा यहाँ से 5.975 माइनस 5 एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से डेल्टा टी है ना आर नॉट, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.39 अपॉन 500। ओके, व्हेन यू सॉल्व इट यू विल फाइंड 345.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट देख लीजिएगा 65 डिग्री आएगा ना, 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इजी है, उसी फॉर्मूले को आप यूज करके कैसे भी मॉडिफिकेशन करके, यू कैन टेक रेशियो ऑल्सो, रेशियो लेंगे तो आर नोट हट जाएगा डायरेक्ट वहाँ से, ठीक है। लेकिन अल्फ़ा गिवन नहीं है, फिर अल्फ़ा तो फाइंड करना होता है ना, यस। सो अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया, पहले पुट कर दिया और अपने आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट चलते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड।